کینیڈا کو تو لوگ اوبویسلی جانتے ہیں، بہت عرصے سے ان کی امیگریشن چل رہی ہے اور لوگ اپلائی بھی کرتے ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ ان پیرالل اب آسٹریلیا نے بھی قدم اپنے جما لیے ہیں اور اس کے پاس پروونشل نامنیز ہے کہ پروونسز آپ کو جو ہے وہ نامنیٹ کرتے ہیں اور مائگریشن آپ حاصل کر سکتے ہیں. ویئرز آسٹریلیا کے اندر 3 ویزا کلاسز ہیں، 189 جو کہ فیڈرل ہے، 190 جو کہ اسٹیٹ پرماننٹ ویزا ہے، اینڈ 491 ہے جو کہ پروویژنل ویزا ہے. اگر آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں جو کہ ریجنل ایریاز میں آسٹریلیا میں، سڈنی، میلبرن کے علاوہ، تو وہ انہوں نے باقاعدہ کیٹیگری دی ہوئی کہ آپ فیملی اسپانسرڈ اسٹریم میں اپلائی کر سکتے ہیں. کہ اگر کوئی دوسرا بھی آتھرائز ہے تو اس کو بھی کہیں گے آتھرائز کے پاس بھی نہ جاؤ. جی اچھا، ان سے پوچھا جائے کہ پھر آپ آتھرائز کے پاس نہ جانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو آتھرائز ہے. لیگلی جو ہے ورڈ آتھرائز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو پہلے آپ اس کی تشریح کر دیں. المیہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بغیر ریسرچ کے چلے آتے ہیں. آسٹریلیا میں فائدہ یہ ہے اپلائی کرنے کا، اب پالیسی بھی ریلیکس ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے مسکرا رہے ہوں گے. میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ، آپ کی دوست، آپ سب کی فیوریٹ کہکشاں فیصل، اور آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. جی جناب، آج ایک بہت اہم موضوع پہ میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں. آج ہم بات کریں گے امیگریشن کے حوالے سے، کنسلٹنٹ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے یہاں پر دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت زیادہ اسکیمز ہونے لگ گئے ہیں. بہت پہلے سے ہوتے تھے لیکن اس پہ اتنی اویئرنیس ہی لوگوں کو نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے ہر گھر میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کا بچپن سے خواب ہوتا ہے کہ مجھے بیرون ملک جا کر جو ہے اپنا فیوچر بنانا ہے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے. لیکن مشکلات جب آتی ہیں، جب اس بچے کے ساتھ جب وہ بڑا ہوتا ہے، اپنے خوابوں کی تعبیر پانا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کوئی مس ہیپ. خواتین جو ہیں اپنا سونا بیچ کر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں کہ ہمارے بچے کا جو خواب ہے وہ پورا ہو جائے. لیکن خواب کی تعبیر کیسے ہوگی اگر وہ کسی جو ہے نیگیٹو بندے کے ہاتھ، کسی اسکیم کے ہاتھ جو ہے وہ بیچارہ اپنے فیوچر کی تکمیل حاصل نہیں کر پاتا. تو ان سب سے بچنے کے لیے، ان سب کی اویئرنیس حاصل کرنے کے لیے آج ہم نے جو اپنے پروگرام میں مدعو کیے ہیں گیسٹ، آئیے آپ کا ان سے تعارف کرواتی ہوں. جناب عادل اسماعیل صاحب ہیں جو کہ سینئر امیگریشن ایکسپرٹ ہیں، ڈائریکٹر ہیں سپیریئر کنسلٹنگ کے، آتھورائز ایجنٹ ہے RCIC بائی گورنمنٹ آف کینیڈا. آئیے بڑھتے ہیں ان کی جانب. سر کے پاس یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے 16,000 سے زیادہ فیملیز کو جو ہے وہ ان سے مستفید ہو چکے ہیں، اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر چکے ہیں، اور 20 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے. بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر؟ الحمدللہ آل گڈ. انہی کے ساتھ ساتھ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ برابر میں جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی آپ کا تعارف کرواتے ہیں. ابو بکر عادل ہیں جو کہ امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں ایٹ سپیریئر کنسلٹنگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس آن دی شو. آپ دونوں کو باضابطہ طور پہ ویلکم کرتی ہوں اپنے پروگرام میں. سب سے پہلے تو جاننا چاہوں گی سر کہ کورونا کے بعد، پینڈیمک کے بعد معاشی بحران بہت زیادہ پاکستان پر جو ہے سب نے دیکھا، تو کیا اب کون کون سے مواقع ہیں امیگریشن سے ریلیٹڈ جو پاکستان کے لیے ہیں؟ دیکھیے، پروفیشنلس کے لیے تو کافی مواقع ہیں، خاص طور پر کینیڈا اینڈ آسٹریلیا. اور کینیڈا کو تو لوگ اوبویسلی جانتے ہیں، بہت عرصے سے ان کی امیگریشن چل رہی ہے اور لوگ اپلائی بھی کرتے ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ ان پیرالل اب آسٹریلیا نے بھی قدم اپنے جما لیے ہیں اور اناؤنس کر دیا ہے. کیونکہ 2 سے 3 سال ہو گیا آسٹریلیا بڑا سخت رہا ہے، بڑا اسٹرینجڈ رہا ہے، بارڈرز کلوز رہے ہیں. تو آسٹریلیا کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پروفیشنلز ہیں، سیمی پروفیشنلز ہیں، یا ہائیلی اسکلڈ والے لوگ ہیں، ان کو توجہ کرنا چاہیے آسٹریلیا کی طرف. اور اس میں پروسیسنگ ٹائم بھی جو ہے وہ کم ہوگا کمپیریٹیولی. کیونکہ اگر دونوں کنٹریز کا موازنہ کیا جائے، کیونکہ مائگریشن تو چاہیے لوگوں کو معاشی حالات کی وجہ سے اور سکونت اختیار کرنے کی وجہ کے لیے، یا پاسپورٹس کے حصول کے لیے، تاکہ ٹریولنگ آسان ہو اور ایز آف لائف کے لیے. تو دونوں ممالک جو ہے وہ اوپن ہیں اس وقت، اور کافی لوگ جو ہے وہ مائگریٹ کر رہے ہیں. بٹ آسٹریلیا کو اس وقت جو ہے وہ ایج حاصل ہوا ہے. کیونکہ اگر ہم پروسیس کو کمپیئر کریں تو پروسیس کے اندر آسٹریلیا کے پاس لینگویج اسیسمنٹ کے مد میں مختلف آپ کے پاس آپشنس موجود ہیں. ٹھیک ہے. صرف آئلس کے اوپر جو ہے کیونکہ لوگ آئلس کے اوپر جو ہے وہ اسٹک اپ ہو جاتے ہیں، تو آسٹریلیا آپ کو جو ہے موقع دیتا ہے کہ صرف آئلس نہ کریں. آپ اگر PTE کر سکتے ہیں، CAE کر سکتے ہیں، ٹوفل کر سکتے ہیں. یہ سارے لینگویج اسیسمنٹس ہیں، تو ان کے بنیاد کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ پوائنٹ بیس سسٹم ہے، پوائنٹس آپ کو جو ہے وہ لینگویج کے بغیر پورے نہیں ہوں گے. اوکے. اور اس کے ساتھ بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا کے پاس کمپیریٹیولی کینیڈا کے
3 वीज़ा क्लासेस हैं, वेरस कनाडा के पास सिर्फ 2 ही है। एक फेडरल है जिसका कट ऑफ बहुत हाई है, हाई नोट के ऊपर वो काम कर रहा है, और उसके पास प्रोविंशियल नॉमिनीज है कि प्रोविंसेस आपको जो है वो नॉमिनेट करते हैं और माइग्रेशन आप हासिल कर सकते हैं। वेरस ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 वीज़ा क्लासेस हैं, 189 जो कि फेडरल है, 190 जो कि स्टेट परमानेंट वीज़ा है, एंड 491 है जो कि प्रोविजनल वीज़ा है। तो आपके पास मौके ज़्यादा हैं माइग्रेट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप माइग्रेट करते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी भी ले लेते हैं, तो पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली भी फ़ायदा ये होता है कि आप रेमिटेंसेस भी आप देते हैं। तो एक अच्छा अमल है, लोग जो है वो हासिल करते हैं पासपोर्ट और उसके असूल के लिए जो है। और ख़ास तौर पर आपको उन लोगों के पास जाना चाहिए, जो मैं हर जगह पर ये अपनी बात कर रहा होता हूँ कि आपको उन लोगों के पास जाना चाहिए जो ऑथेंटिक हैं, जो मुस्तनद हैं और एक इंडस्ट्री में एक टाइम लगा चुके हैं और उनके पास एक सक्सेस स्टोरीज हैं। तो ऑथराइज लोगों के पास आप जाएंगे तो आपको कभी भी स्कैम का और उसका सामना नहीं होगा। जो भी गुड टू बी ट्रू ऑफर्स आपको मिलती हैं, उसको पहले उसकी छान भटक जो है वो करनी ज़रूरी है, उसकी ड्यू डिलिजेंस आपको करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ फुकदान ये है कि लोग ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं, बिल्कुल, और जो रिसर्च नहीं करते हैं, और कोई भी सदा लगाता है कि आपको बाहर भेज दूंगा, इतने पैसे ले आओ। तो ये अब रुझान को ख़त्म है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हालात की पेश नज़र बहुत ज़्यादा परेशान हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो हम कहते हैं कि हमें कोई भी बाहर भेज दे, बोरी भी बंद करके भी भेज देगा तो हम जो है वो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ना होना चाहिए। तो थोड़ा सा हमें भी एजुकेट होने की ज़रूरत है। दैट्स द रीज़न वाई मैं अपने काउंसलिंग को ये समझता हूँ कि मैं लोगों को एजुकेट करूँ। नो मैटर बिजनेस अपनी जगह पर, कोई मुझसे सर्विसेज लेता या नहीं लेता, मैं उन तमाम चीज़ों की आगाही दूँ जिससे लोगों को फ़ायदा हो कि वो स्कैम से बच सकें। फिर वो जाकर किसी और ब्रांड से, किसी और रजिस्टर्ड कंसल्टेंट से भी अगर कर लेता है, डजंट मैटर। मेरा काम ये पूरा हो गया कि किसी को अगर मैंने किसी स्कैम से या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से अगर बचा लिया, क्योंकि हमें खुद भी इस बात को जो है वो लेना है कि हमारे मुल्क की जो है वो बदनामी होती है लोगों की वजह से। तो अगर हम बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसी भी स्टेज के ऊपर, एक तो ये अपनी जगह पर, दूसरा ये कि एथिकली भी हमें जो है वो बहुत ज़्यादा पाबंद होना चाहिए कि एथिकली भी जो है अगर हम बिजनेस भी कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ये होता है कि ना, एक तो वो तादाद है कि नॉन रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स की है और गली गली कूचे में जो है वो खुले हुए हैं और वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है ना, लोगों को। लेकिन एक ऐसी भी तादाद है कि जो रजिस्टर्ड भी हैं, ठीक है ना, लेकिन उन एथिकली हम जो है वो मॉरली इतना जो है वो डीवैल्यू हो गए हैं कि वो हमें ये नहीं पता चलता कि हम कम्पीट किस तरह से करें। कि अगर कोई दूसरा भी ऑथराइज है तो उसको भी कहेंगे ऑथराइज के पास भी ना जाओ जी। अच्छा, उनसे पूछा जाएगा फिर आप ऑथराइज के पास ना जाने का क्यों कह रहे हैं? वो तो ऑथराइज है, लीगली जो है वर्ड ऑथराइज का मायने क्या होता है, तो पहले आप उसकी तशरीह कर दें। तो वो ये, तो हम क्योंकि ये नहीं समझते कि भाई कम्पीट करना है फॉर स्किल्स करें, आप अपनी कॉम्पिटेंसी से करें। मैं क्यों 3-4 हज़ार $5,000 एक कंसल्टेंट को दे दूँ फॉर नथिंग, जिसमें आप ECA भी नहीं कराएंगे, जिसके अंदर आप जो है वो कोई और सर्विसेज भी नहीं देंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के। अगर तो ब्रांड्स के अंदर भी एक बेहतर कंपटीशन होना चाहिए और ओपन होना चाहिए कि आप लोगों को जो है वो हेल्प कर सकें। सर, पॉइंट्स का आपने जिक्र किया, तो कितने पॉइंट्स होने चाहिए अगर आपको? नहीं, कनाडा के अंदर तो फेडरल का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि पहले 67 पॉइंट्स आप मीटअप करेंगे इन ऑर्डर टू गेट इनटू द पूल, क्योंकि पूलिंग सिस्टम है, बैलेटिंग सिस्टम है, जिसका नाम 2015 में ये लॉन्च हुआ, जिसका नाम एक्सप्रेस एंट्री रखा। तो आपके पास 67 पॉइंट्स टू क्रिएट द प्रोफाइल है, और इसके ऊपर जब CRS में आते हैं तो वो 1200 में से पॉइंट्स जो है वो मिलते हैं। अभी टेक्निकल चीज़ें, इसके लिए आपको रहनुमाई की ज़रूरत है, या आप खुद मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स पर जाकर, क्योंकि एज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, लैंग्वेज असेसमेंट के ऊपर, स्पाउस क्वालिफिकेशन एंड असेसमेंट्स के ऊपर जो है आपको पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। तो आप बेहतर ये है कि अगर खुद से नहीं करना चाहते हैं, टाइम की किल्लत है और आप जो है प्रैक्टिस में नहीं हैं, क्योंकि आप अपना केस को शायद बिगाड़ सकते हैं, आप NSS का तयन आपको सही नहीं होता, तो बेहतर ये है कि आप रहनुमाई हासिल कर लें। सेम इज़ द केस विद ऑस्ट्रेलिया, वो भी पॉइंट सिस्टम है, वहाँ पर एग्जैक्टली जो है आपको 65 पॉइंट्स करने हैं, और 65 पॉइंट्स करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगेन वहाँ पर EOI सिस्टम है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का सिस्टम है, पूलिंग सिस्टम, इन्विटेशन सिस्टम तो रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने अप्लाई किया तो आपको फौरी तौर पर मिल जाएगा। अमंग मिलियंस ऑफ प्रोफाइल्स आप भी पार्टिसिपेंट होंगे उस पूल के अंदर, और उसमें जो बेहतर होगा, जिसका ऑक्यूपेशन हाई इन डिमांड हो उस मौके पर, तो वो उसको इन्विटेशन पहले मिलेगा। आप साल भर 2 साल तक आप जो है पूल में रहते हैं,
कोई ये नहीं गुमान करना चाहिए किसी को कि मैं पूल में अभी आया हूँ प्रीरिक्विजिट करने के बाद, स्किल असेसमेंट करने के बाद, लैंग्वेज असेसमेंट भी कर लिया है, तो मैं जैसे ही आऊँगा ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ। नहीं, आपसे भी बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। और प्रोफाइल को आपको अपने प्रोफाइल के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत जहाँ जहाँ है वो एडवाइस लेकर या खुद रिसर्च करके इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 6.5 आइल्स के ऊपर है तो उसको 7 करना चाहिए, कोई 7 पे तो 7.5 8 करना चाहिए। तो ये इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है मौजूद, और यही नाम है इमिग्रेशन के जो है वो को काम करने का, कि अगर आप प्रॉपर एडवाइस करेंगे लोगों को, उनकी प्रोफाइल में बेहतरी आएगी, उनके चांसेस ऑफ जो है सक्सेस बढ़ जाएंगे, और यही हमारा काम है। ठीक है, बढ़ते हैं अबू बकर की जानिब। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में हुनरमंद अफराद की इमिग्रेशन के लिए अहलियत का क्या मयार होना चाहिए? दोनों कंट्रीज़ में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अपने तौर पे उन्होंने जो है वो तयन किया हुआ है और वाज़े किया हुआ है, तो उसको प्रॉपर रिसर्च करना पहले ज़रूरी है। जिस तरह आदिल साहब ने भी फरमाया कि कनाडा में आपको 67 पॉइंट्स करने हैं, और उसमें जब हम रिसर्च के ऊपर जाते हैं और अब उसको जो है ना छानते हैं तो हमें पता चलता है कि ज़्यादातर वो हज़रात क्वालिफाई करते हैं जो कि प्रॉपरली तालीम याफ्ता हैं, और कम से कम भी अगर 3 से 4 साल की बैचलर्स डिग्री है तो ही आप क्वालिफाई करते हैं, ख़ास तौर पे कनाडा के हवाले से। वेयर ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ज़्यादा फोकस होता है आपके स्किल्स के ऊपर। जो हुनरमंद अफराद है, इवन अगर आप सेमी स्किल्ड भी हैं और आपने सॉर्ट ऑफ कोई डिप्लोमा भी किया हुआ, लेकिन अगर आप अपनी इस फील्ड में जो है वो पक्के हो चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है और आपका ऑक्यूपेशन जो प्रोफेशन है, जो भी आप हुनरमंद हैं और वो डिमांड में हैं उस कंट्री के अंदर, तो आप उन क्रेडेंशियल्स के ऊपर भी क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि आपके पास एक अच्छी क्वालिफिकेशन अगर है, आपकी एज 45 और उससे कम है और आइल्स के अंदर आप एक मुनासिब स्कोर ले सकते हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, और यही यूजुअली जो है वो अहलियत का मेयार भी होता है हुनरमंद अफराद के लिए ख़ास तौर पर। ओके, दैट्स वेरी गुड। सर, पाकिस्तानी ताजिर ऑस्ट्रेलिया कनाडा कैसे हिजरत कर सकते हैं? कम बस कम कितनी सरमायाकारी की ज़रूरत है? देखिए, पहले तो हम लेते हैं कनाडा को, क्योंकि मैं पहले तो हूँ ऑथराइज एजेंट फॉर कनाडा। तो कनाडा के अंदर बिजनेस इमिग्रेशन एंटरप्रेन्योर के नाम से मौजूद है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं उसमें मिनिमम जो नेटवर्क, पहले आपका एहसास देखे जाते हैं कि आप अहल हैं या नहीं है, और उसके लिए आपके पास 5 से 6 लाख डॉलर का नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी है। ये आपने जो है वो लीगली ओन किया हो, ये और आपके पास मौजूद हो, और साथ में आपके पास या तो बिजनेस एक्सपीरियंस हो 2 से 3 साल का, या आप सीनियर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो। ये भी हजरात जो है वो बिजनेस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ आप बिजनेस का प्रपोजल देंगे, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के अंदर जा रहे हैं, तो आपके पास बिजनेस प्रपोजल होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल बिजनेस हो कनाडा के अंदर। वो आप पेश करेंगे, प्रपोज करेंगे, एंड देन उनको कहेंगे, उनको बताएंगे कि एज पर द रिक्वायरमेंट मैं तकरीबन $2 लाख $200,000 जो है वो अपने बिजनेस में लगाऊंगा। ठीक है। तो इन बुनियाद के ऊपर जब उसकी ड्यू डिलिजेंस करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, तो आपको इमिग्रेशन बिजनेस इमिग्रेशन के मद में आपको मिल जाएगी, और आप फिर परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। वेयर एज ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इस वक्त हाई इन डिमांड वीज़ा क्लास चल रहा है वो 188 है, और 188 की जो तारीफ वो ये है कि आपके पास मिनिमम भी $1.2 मिलियन का नेटवर्थ होना चाहिए, विच कम्स अराउंड 18 करोड़ रुपीज़। इतना नेटवर्थ आपके पास जो होगा, और साथ में फिर आप बिजनेस भी आप करते हो, आपके पास टर्नओवर हो तकरीबन 7.5 लाख का टर्नओवर हो पिछले 2 साल का, तो ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर एक आपको एडअप कर दूं कि मज़े की बात ये है कि जो कंसल्टेंट्स जिनकी हम आप बात कर रहे थे कि वो कंपनीज खोल के बैठे हैं, वो 188 को ऐसे बेचते हैं और ऐसे बेच रहे हैं, क्योंकि आम आदमी को जब नहीं पता होता तो वो उनको कहते हैं कि आप $1.2 मिलियन की नेटवर्क भी हम बना देंगे, या किसी को बताया ही नहीं और उसको केस ले लिया और $2 लाख आपने चार्ज कर ली। ये बड़ा अलमिया है। मैं स्पेशली वोकल ज़्यादा हूँ, लोग कहते हैं कि आपको तकलीफ क्यों है। बात यह है कि लोग यही फिर लोग घूम के आते हैं, यही लोग फिर आपके आके जो है ना वो कह रहे होते हैं कि ये क्राइटेरिया, उनको फिर समझाना, फिर बताना, और फिर वो लुटे पिटे वैसे ही होते हैं। फिर तब वो जब रिलेट करते हैं, जितनी भी मेरी वीडियोस देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो मेरे अपीयरेंसेस हों किसी चैनल के ऊपर, तो मेरा सबसे पहला जो होता है आर्गुमेंट कि भाई आपको रिसर्च करने बहुत ज़रूरी थी, आपने रिसर्च नहीं की, अब आप रिसर्च कर रहे हैं, तो अब आपको पता चल रहा है, और अब आप जो है वो नुकसान कर रहे हैं। तो ये जो बिजनेस क्लास है ये थोड़ा सा हाई एंड है, ये हर बंदा जिसको कहते हैं कि ना यंगस्टर्स या प्रोफेशनल्स नहीं कर सकता और ना करना चाहिए। और हम चूँकि खुद जब वो दावत देते हैं और आप उस दावत को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं सब कुछ बना दूंगा और सब कुछ कर दूंगा, तो फिर आपको आखिर में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको नहीं मिलना कुछ भी, और आज तक ना मिला ना मिल सकेगा, तो इसलिए आपको जो है वो नुकसान हो जाता है। तो ये 2 वीज़ा क्लासेस हैं जो आप ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है सर, बात कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक का टाइम आगे तो नाज़िर कही जाएगा। मैं देखते हुए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए।
जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। अबू बकर, लोग इमिग्रेशन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं और हकीकी तजुर्बेकार कंसल्टेंट का इंतखाब कैसे कर सकते हैं? पहले तो बड़ा ज़रूरी है आवाम के लिए कि जिस तरह आदिल साहब ने पहले भी फरमाया प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में कि रिसर्च करना बड़ा ज़रूरी है। अलमिया ये है कि लोग जो है वो बगैर रिसर्च के चले आते हैं, और जो भी शख्स उनको सुनहरे ख्वाब दिखा दे और बता दे कि जी आपका काम जो है वो आप इतने पैसे ले आएँ और हम करवा देंगे, जहाँ पर भी ये लफ्ज़ लग जाए कि जी हम करवा देंगे, हम जॉब ऑफ़र लगवा देंगे, हम कनेक्शन करवा देंगे, हम आपका ITA करवा देंगे, मुख्तलिफ़ स्ट्रीम्स के अंदर जो है वो स्कैम किया जाता है। ख़ास तौर पे कनाडा की अगर हम बात करें तो चूँकि लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान इसलिए हो जाता है कि हर प्रोविंस की, हर सूबे की वेबसाइट्स अलग हैं, वहाँ पर इंफॉर्मेशन डिसिफर करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी शख्स जो है वो जो उठता है और जब बड़ा खूबसूरत ऑफिस बना लेता है, वो कोई एक कनाडा के सूबे का नाम पकड़ेगा और उसके तहत एक स्ट्रीम लगा देगा कि जी ये स्ट्रीम आई हुई है और आप इसमें अप्लाई करते हैं, आप लाख रुपये अभी दे दें, बाकी आप ITA पे दे दें, और उसको आप फिर वेरीफाई नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली जो है वो आपका नुकसान भी होता है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी जिस तरह आदिल साहब ने फरमाया, खासतौर पे 188 वीज़ा क्लास के हवाले से, कि हर शख्स जो स्किल प्रोफेशनल्स भी हैं, जो यंगस्टर्स भी हैं, इवन 23-24 साल के लड़के लड़की को कह दिया जाता है कि जी आप आएँ और अप्लाई कर दें, जबकि उसकी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट जिस तरह फरमाया कि 18 करोड़ से भी ज़्यादा की है। तो थोड़ा सा रिसर्च की कमी है, आपको मुताला करना ज़रूरी है। जब आप इमिग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं तो एक इतना बड़ा जब स्टेप है, आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ स्टेप लेने जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप मुताला थोड़ा सा करें, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लें। ज़्यादातर लोगों का आर्ग्यूमेंट या जो होता है वो ये है कि हमारे पास वक्त की कमी है, इसीलिए ऑब्वियसली कंसर्न के पास आते भी हैं कि ईज़ ऑफ प्रोसेस हो जाए। लेकिन अगर वक्त की कमी है तो ये बेहतर नहीं होगा आपके लिए कि आप सारा काम कंसल्टेंट के ऊपर छोड़ दें। इवन अगर ऑथराइज एजेंट के पास भी आ रहे हैं, जैसे आदिल उस्मान साहब हैं या और भी लोग काम कर रहे हैं, तो ऑथराइज एजेंट के पास भी आ रहे हैं, तो आपको जो बात कही गई है हमारी तरफ से उसको भी क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना ज़रूरी है। जब आप रिसर्च कर लेंगे तो मोस्ट लाइकली ये है कि आप स्कैम से बच सकते हैं। और दूसरा ये है कि कंसल्टेंट के बारे में देखना ज़रूरी है। आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, सिर्फ ये देखकर मरूब ना हो जाए कि जी ये बड़ा खूबसूरत ऑफिस बनाया हुआ है, आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा। या कोई शख्स कह रहा है कि जी मेरा तो ऑफिस कनाडा में है या USA में है, तो आप इस नाम पे मुझे $4,000 दे दें, क्योंकि मेरे तो देखें ना मैं बाहर बैठता हूँ तो मेरा कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी ज़्यादा है। आपको ये देखना है कि जो ऑथराइज एजेंट है क्या वो आपके सामने अवेलेबल हैं, क्या आप कल को उनको अकाउंटेबल कर सकते हैं, और क्या वो वैल्यू फॉर मनी दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे, क्या आपको ECA की डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प हो रही है, क्या आपको प्रोविजनल नॉमिनी जब आप अप्लाई करें तो उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास है, सक्सेस स्टोरीज़ हैं। तो जब तक आप सक्सेस स्टोरीज़ नहीं देखेंगे, जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके कंसल्टेंट ने पिछले 10-12 साल का जो क्लेम कर रहा है एक्सपीरियंस, क्या उसने किसी का काम करवाया भी है, क्या वो वाकई सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो असल लोग दिखाना ज़रूरी है। जैसे हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जाकर बात करते हैं और लोगों को दिखाते भी, हमारी वेबसाइट्स के ऊपर बाकायदा सक्सेस स्टोरीज मेंशन है, तो अल्टीमेटली लोगों को फिर जांच लेना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं है और उसके अंदर सदाकत नहीं है। तो उसको जब आप देख लेंगे और उनका वेरीफाई आप कर लेंगे, सक्सेस स्टोरीज देख लेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कोई लेगेसीज फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जैसे हम एक लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं। माई ग्रैंड फादर वॉज ऑल्सो अ कंसल्टेंट, माई फादर इज़ अ कंसल्टेंट, आई एम द 3rd जनरेशन इन दिस इंडस्ट्री। तो कुछ लेगेसीज हैं जिससे लोगों को एतमाद होता है, और भरोसा अगर आपका एक दफ़ा टूट जाए तो फिर बनता नहीं है इतनी आसानी से। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी देखना। बिल्कुल। तो जो लोग ये 2 नंबरी कर जाते हैं, धोखाधड़ी कर जाते हैं, उनके लिए कोई रिपोर्ट करने का कोई हमारे पास मौका होता है, नहीं होता? प्लेटफॉर्म तो मौजूद है, ओके, आपके पुलिसिंग है, आपके और इदारे हैं, बट ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट हम इन मामलात के अंदर कि हमारी सुनवाई जो है वो नहीं होती उस तरीके से, तो लोग नहीं जाना चाहते। कुछ लोग जो है वो शर्म में भी आ जाते हैं कि यार जाएंगे तो कोई और मेरा जो है जानने वाला हमारे साथ स्कैम हो गया, किस मुंह से बताएंगे, ये वाली बात भी होती है। तो इसलिए लोग फिर वो कंसल्टेंट्स के पास आके तो रोते हैं, जो मैं अक्सर लोग बात करता हूँ कि भाई लोग हमारे पास आके रोते हैं कि ये हो गया और अब आप जो है ना ये कर लें, तो हम मुझसे वेरीफाई करवाते हैं अक्सर लोग तो है कि ये IT जाली तो नहीं है। ये रोज़ का काम है मेरा, और मैं कोई 20 अगर मीटिंग करता हूँ दिन के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि 15 लोग तो ऐसे होंगे जो या तो डिच हो गए या अभी डिच होने वाले हैं, क्योंकि उनको अभी काम चल रहा है और वो विजिट्स कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, जैसे कल एक हमारे पास आए मीटिंग करने बच्चा, तो वो इंटरमीडिएट जो है था और उसको तमाम कंसर्न्स कह रहे हैं हो जाएगा, सुपीरियर कह रही है कि नहीं होगा। तो हम कैसे ले सकते हैं? आप काउंसलिंग फील्ड के अंदर हैं, आप काउंसलिंग के अंदर प्रॉपर काउंसलिंग आप करेंगे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है, और उसके ऊपर भी हमें ऑब्वियसली, क्योंकि एक नोटोरियस जो है ना प्रोफेशन है हमारा, हमें सुनने को भी मिलती है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो ये तो ऑब्वियसली एक कल्चर का हिस्सा है कि भाई कई लोग तो आपको भी खुद भी टारगेट कर लेते हैं, यार आपको तो पता ही कुछ नहीं, इसलिए आप भेज ही नहीं सकते मैट्रिक इंटर वाले को। लेकिन हमारा देखें आर्गूमेंट अलग है कि हमारा हाईली स्किल्ड
प्रोफाइल के अंदर या इमिग्रेशन पाथवे के अंदर एक लो स्किल्ड कैसे जा सकता है। लोग नीचे लिख देंगे नहीं आदिल साहब तो मना करते हैं कि जो है वो मैट्रिक इंटर वाले यूरोप नहीं जा सकते, कुछ लोग तो काम कर रहे हैं। देखिए आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। हमारा जो मौक़िफ़ है या हम जिस इंडस्ट्री में या जो हम जो है सर्विसेज ऑफर करें वो स्किल्ड इमिग्रेशन के मुताबिक है। वेराज जो लोग वर्क वीज़ा पे चले जाते हैं मैट्रिक, वो जाएं, वो हमारा डोमेन नहीं है एक्चुअली, वो मुख्तलिफ तरीके से जाएं, लेकिन उनको भी फिर चाहिए जो रिक्रूटमेंट एजेंट्स या और ऐसे कोई कंसर्न जो लो स्किल्ड पे काम करते हैं, तो उनकी आपको ड्यू डिलिजेंस करना ज़रूरी है कि वो लाखों रुपए आपसे चार्ज करते हैं। तो यही जो बकर ने भी कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है, और दूसरा एक जो मैंने शुरू में भी कहा था कि एथिकली बड़ा पस्ती का शिकार हो गए। मैं अपने भी जो और ब्रांड्स हैं मेरे साथ जो है उनको भी यही दावा देता हूँ कि भाई आप जो है वो बजाय इसके कि ये टारगेट करें कि देखें हसद को तो कोई इलाज नहीं है, वो तो कुछ नहीं हो सकता। आप हेल्दी कंपटीशन पे जाएं। ये तमाम रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स और मैं ब्रांड्स को मैं कह रहा हूँ जो अच्छे ब्रांड्स हैं, क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और बाकायदा मैं अपने ऑफिस में भी लोगों का नाम लेता हूँ कि आप इनके पास चले जाएं, आप इनके पास चले जाएं, जो अफोर्ड कर सकता है जहाँ से करें। मेरे रिस्क का हिस्सा जो है वो कोई और नहीं ले सकता। आई एम अ वेरी ट्रू बिलीवर हूँ मैं इसके ऊपर कि मैं बड़ा खुल, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि इतना खुल के क्यों बात करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मैं इसलिए करता हूँ कि ना आप थोड़ा सा अपने जो है ना अपने आप के ऊपर वर्क कर लेना, कि अपने ईमान के ऊपर आप जो है थोड़ा सा वर्क कर लें कि भाई क्या चीज़ आपके लिए सही है और लोगों के लिए क्या चीज़ सही है। अल्टीमेटली लोग आपको रिगार्ड भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपके बिजनेस भी आप उसी तरीके से फ्लरिश होगा। बिल्कुल सर। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया ने विजिटर वीज़ा के लिए दरख्वास्त कैसे दी जा सकती है? विजिटर वीज़ा हासिल करने के लिए अहलियत का मेयार क्या होना चाहिए? देखिए इसमें तो ऐसा कोई पॉइंट सिस्टम तो नहीं होता। विजिटर वीज़ा कोई भी शख्स अप्लाई कर सकता है जो ख्वाहिशमंद है, बाहर मुल्क में जाना चाहता है। अब उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। मीन्स अगर किसी को अपनी फैमिली विजिट करनी है तो ऑब्वियसली आपके कोई फैमिली मेम्बर्स वहाँ होना चाहिए, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, इन्वाइट करेगा। आपकी अपनी अहलियत भी इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि आपको ठीक है एजुकेशन हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कहाँ जॉब कर रहे हैं मुस्तनिद इदारे में, या आपका क्या बिजनेस है, ये और जिसको हम यूँ कहते हैं कि आम अल्फाज में लोगों के लिए टेक्निकली यूँ कह लें कि आपका जो है प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो या टेक्निकली स्ट्रॉन्ग टाइज हो, कि आपके मुल्क में आपके स्ट्रॉन्ग टाइज अगर हैं विच कंपेल यू टू कम बैक, जो आपको खींचेगी आपके मुल्क में लाने के लिए, तो वीज़ा ऑफिसर आपको जो है वो दे देगा, क्योंकि ये वहाँ पर जाकर रुकेगा नहीं। तो हमारे मुल्क के अंदर एक जो प्रॉब्लम सिर्फ ये है विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ल्स की, वो ये कि एक तो हमारा पासपोर्ट की वैल्यू बहुत डाउन हो गई है, और दूसरा ये कि फैब्रिकेशन बहुत होती है। फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लोग जाना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और जब चले भी जाते हैं और जो सही डॉक्यूमेंट्स पे भी चले जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि वापस ना आए क्योंकि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हो रहे हैं। तो ये भी एक जो है वो अलमिया है। बट विजिटर वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के ऊपर है। नॉर्मली सारे ही यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फाइनेंशियली आप जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके केस को भी स्ट्रॉन्ग करेगी अल्टीमेटली। ठीक है, तो इसलिए आप जो है वो अप्लाई करें। इवन अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। आप प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपना बताएंगे, टूरिज्म है तो भी आपको जो, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपके पास प्रीवियसली आपने कोई विजिट्स भी नहीं किए हुए, टूरिज्म आपका नजर नहीं आ रहा, तो फिर आप वो कहते हैं किस मुंह से आप अप्लाई करेंगे कि जो है ना ये तो सारी चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है। तो पहले होमवर्क करें। ठीक है, जरूरी नहीं कि अगर आप अभी फ्रेश पासपोर्ट है तो आप कहते हैं लोग क्या करूं मैं, तो प्रिपेयर करें अपने आप को, तैयार करें, 6, 8, 10 महीने, 1 साल आप लगाएं और अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, देन अप्लाई करें। क्यों नहीं मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में रिलेटिव इमिग्रेशन की दरख्वास्त की हिमायत कैसे कर सकते हैं? रिलेटिव्स का ख़ास तौर पे बड़ा वाइटल रोल प्ले होता है, क्योंकि पिछले 2 दिहाइयों में जिस तरह हम भी काम कर रहे हैं, काफ़ी हमने अपने क्लाइंट्स को ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जो है वो मुकीम करवाया और काफ़ी अरसे से वो वहाँ पर मौजूद भी होते हैं। तो उनके भी अब एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स जो है वो हमसे रब्ता भी करते हैं और आते हैं, और उनका एक बड़ा मेजर सवाल होता है कि जी हमारे तो रिलेटिव्स वहाँ पर हैं तो हमें किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। तो मुख्तलिफ वीज़ा क्लासेस अवेलेबल हैं। जिस तरह अगर हम कनाडा के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ प्रोविंसेस जो हैं, जो कनाडा के मुख्तलिफ सूबे हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी वीज़ा क्लासेस जो है वो लोगों के सामने रखते हैं। और उसमें जो सर फहरिस्त है जो कैनेडियन प्रोविंस है सस्कैचुअन और मैनिटोबा, ख़ास तौर पे ये आपको पॉइंट्स में इजाफा आपको देता है अगर आपके कोई रिलेटिव्स मौजूद हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, खास तौर पे आपके कोई बहन भाई हैं, कज़न हैं, तो अगर वो सस्कैचुअन में हैं या मैनिटोबा में हैं तो आपको पॉइंट्स में भी फ़ायदा होगा। एंड अल्टीमेटली जब आप वहाँ पर जाएंगे, रिहाइश लेंगे, तो इमोशनली भी आपको एक सपोर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आप पहले से जो है वो आइडेंटिफाई कर लें अगर आप कनाडा को खास तौर पर अप्लाई करें। वेयरएज़ ऑस्ट्रेलिया की जब बात आती है तो उन्होंने भी एक ख़ास तौर पर एक कैटेगरी बनाकर दी हुई है 491 वीज़ा क्लास में।
ٹھیک ہے. جو کہ ریجنل ویزا کلاس ہے, اور 491 ویزا آپ ویسے خود سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹلی بھی, لیکن اگر آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں جو کہ ریجنل ایریاز میں ہیں آسٹریلیا میں, سڈنی میلبرن کے علاوہ, تو وہ انہوں نے باقاعدہ کیٹیگری دی ہوئی کہ آپ فیملی اسپانسرڈ اسٹریم میں اپلائی کر سکتے ہیں, اور جو بھی آپ کے ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں ایموشنلی سیٹلمنٹ میں بھی, اور آپ کو جو ہے وہ امیگریشن بھی آپ کا ایک طرح سے سہل ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ کافی زیادہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا. اس کو پہلے سے دیکھ لیں, اپنے ریلیٹیوز میں جو ہے وہ چھان بین کر لیں, اگر آپ کے اچھے تعلقات ہیں تو وہ آپ کو ضرور رہنمائی کریں گے اس میں. بالکل, یہاں پر تعلقات کا اچھا ہونا میٹر کرتا ہے. خاندان والوں سے, اپنے رشتہ داروں سے تعلقات آپ کے اچھے ہوں گے تو آپ کو ضرور انوائٹ کریں گے, کیوں نہیں انوائٹ کریں گے. موسٹلی اونٹیریو میں لوگوں کے ہوتے ہیں, جیسے سڈنی میں ہوتے ہیں آسٹریلیا کے اندر, تو یہ جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں یہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے. جی, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ شاید کوئی آپ کو پرابلم ہو, بٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ وائز آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتے. تو کیونکہ میکسیمم لوگ سڈنی میں, میلبرن میں یا برسبین میں جا رہے ہوتے ہیں, یا اونٹیریو میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں, جس کو پوچھو تو وہ کہتا ہے رشتہ دار میرا اونٹیریو میں, تو مجھے نہیں فائدہ ملے گا. تو پھر میں ایک بتاتا ہوں کہ آپ کو ایز سچ بینیفٹ نہیں, کیونکہ ویزا گورنمنٹ نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ سارے لوگوں کے جو ہے وہ ریلیٹیوز ان بڑے شہروں کے اندر, بڑے صوبوں کے اندر ہے, تو ایز سچ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں, جیسے ابو بکر نے کہا کہ سسکیچون اور مینیٹوبا میں اگر ریلیٹیوز ہیں تو ان کو تو بہت جلدی کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے لیے بڑا بہترین موقع ہے امیگریشن حاصل کرنے کا. اوکے, آسٹریلین امیگریشن میں کتنا پروسیسنگ میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پروسیسنگ ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ویزا کلاس میں اپلائی کریں, کیونکہ مختلف کیٹیگریز موجود ہیں. بزنس امیگریشن الگ ہے, جو تاجر حضرات جاتے ہیں, جو اسکل پروفیشنلز ہیں, آئی ٹی انجینئرز, ڈاکٹرز وغیرہ, ان کے لیے اسکل ورکر کیٹیگری ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس الگ اپنے طور پہ جاتے ہیں, جو بچے ایڈمیشن لے کے پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں, تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہر ویزا کلاس کے لیے ڈفرینٹ ہے, لیکن اسپیسیفکلی جب ہم اسکل امیگریشن کو فوکس کر رہے ہیں تو آسٹریلیا ہو یا کینیڈا ہو, ایک ایوریج پروسیسنگ ٹائم آپ کا 8 سے 12 مہینہ یا اس سے زیادہ 15 مہینے تک جا سکتا ہے. تو یہ بھی خاص طور پہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جو آپ کی امیگریشن آپ اپلائی کر رہے ہیں, اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس, تو یہ چیز جاننا ضروری ہے. اور پروسیسنگ ٹائم میں نے کہا کہ 8 سے 12 مہینے آن ایوریج ہوتا ہے اسکلڈ امیگریشن کا. ٹھیک ہے, مطلب صبر کا جو دامن ہے وہ تھامے رکھنا ہوتا ہے. جی ہاں, یہ اسٹوڈنٹ ویزا نہیں ہے, ٹیمپرری ویزاز جو ہوتے ہیں وہ 2 سے 4 مہینے میں آپ کو اس کے ریزلٹس پتہ چل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ویئرز امیگریشن جو ہے وہ بڑا پیشنٹلی آپ کو جو ہے نا مانیٹر کرنا ہوتا ہے. کبھی کبھی 4 سے 6 مہینے میں بھی آ جاتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ انویٹیشن بیس سسٹم ہے, تو انوائٹ تو گورنمنٹ کی طرف سے آنی ہے, کسی کنسلٹنٹس کے اچھے ہونے کی وجہ سے بھی نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کے اپنے فیکٹرز جو ہے میٹر کرتے ہیں. اس میں آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں سمجھنے میں, اس میں آپ کو ہیلپ کریں امپروومنٹ کرنے میں. یہ ایک کنسلٹنسی کا معیار ہوتا ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی کلچر جو ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا رہا ہے اور بتاتا رہا ہے کہ ایجنٹ کے پاس چلے جاؤ, پیسے لے کے وہ سب کچھ کر دے گا. تو وہ بھی تعداد ہے, لیکن وہ ہمارا وہ کہنا چاہیے نا کہ وہ ڈفرینٹ ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ when you throw peanut you get monkeys, وہی لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جن کا یہی خواب بھی ہوتا ہے, یہی طریقہ کار بھی ہوتا ہے, تو ان سے. لیکن جو پروفیشنلز ہیں جن کو پراپر گائیڈنس اور آگاہی چاہیے, ان کے لیے تو برانڈس اور اچھے کنسلٹنٹس, رجسٹرڈ کنسلٹنٹس موجود ہیں, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بات کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں پہ ناظرین بریک کا ٹائم آ گیا تو کہیں جائے گا, میں دیکھتے رہی مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتے صبح. پڑھتے ہیں عادل صاحب کی جانب, ان سے جانتے ہیں آسٹریلیا کی امیگریشن کے لیے کم از کم آئلٹس کی کتنی ضرورت ہے سر؟ دیکھیے, مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے بغیر آئلٹس یا لینگویج اسسمنٹ, کیونکہ میں نے شروع میں جیسے آپ کو بتایا کہ آسٹریلیا میں فائدہ یہ ہے اپلائی کرنے کا. اب پالیسی بھی ریلیکس ہوگی, لوگ جب زیادہ توجہ کر رہے ہیں, بہت بڑی تعداد بیچلرس ڈگری جیسے انجینئرز ہیں اور بیچلرس ڈگری ہے ان کے پاس, تو وہ کینیڈا میں ایسا ان کی پکنگ نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے بہت بہترین موقع ہے کہ وہ آسٹریلیا اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ آسٹریلیا میں یہ خاص بات ہے کہ آسٹریلیا بیچلرز ہو یا ماسٹرز ہو, پوائنٹس ایک ہی ملتے ہیں. تو محمود یا اس میں برابر ہیں. تو اب آپ جو ہے آسٹریلیا کو اس لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے. مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے آئلٹس یا پی ٹی ای, پیئرسن ٹیسٹ آف انگلش, یا سی اے ای کیمبرج ایڈوانس انگلش, یا ٹوفل ہے. تو یہ آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں کہ مختلف لینگویج اسسمنٹ, صرف آئلٹس نہیں, مختلف لینگویج اسسمنٹ ہے. اگر آپ کو دقت ہو رہی ہے آئلٹس کے اندر تو آپ پی ٹی ای, کیونکہ میں زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں, آسٹریلیا کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ پی ٹی ای کریں, زیادہ ریلیٹیولی آسان ہے. حالانکہ ہمارا کوئی بزنس ان کے ساتھ کوئی ٹائی اپ نہیں, لیکن ہمیں نظر آتا ہے جب ہم ویلیوٹ کرتے ہیں, اتنا سالوں کا ایکسپیرینس ہے, تو ہم اب لوگوں کو کہتے ہیں کہ پی ٹی ای کرنا چاہیے. اور ویئرز کینیڈا کے اندر اگر دیکھیں تو آپ کے پاس پاکستان میں صرف آئلٹس ہے,
Whereas मिडिल ईस्ट के अंदर आपको सेल्पिप एक और टेस्ट होता है जो बहुत से लोगों को नहीं पता यहाँ पर, तो वो मिडिल ईस्ट के अंदर है, जो लोग जा सकते हैं या जो लोग वहाँ रहते हैं और जो शो देखेंगे तो उनको वो सेल्पिप को जो है वो देख सकते हैं। तो पाकिस्तान में खास तौर पर सिर्फ कनाडा के लिए आइल्स के अलावा कोई और चाराकार नहीं है। मिनिमम बेंचमार्क दोनों जगह पर ऑस्ट्रेलिया में एंड कनाडा के अंदर आपको 6 बैंड इन ईच तो होना ही चाहिए। ओके इससे ऊपर फिर हम आपको एडवाइस करेंगे एज पर योर प्रोफाइल, कि आपकी प्रोफाइल के मुताबिक, हर प्रोफाइल डिफरेंट होती है, उसका केस डिफरेंट होता है, ऑक्यूपेशन डिफरेंट होते हैं, उसके मुताबिक फिर उसको एडवाइस किया जाता है। ओके 6 पॉइंट से अगर कम हुआ तो नहीं हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल मुश्किल होगा। कनाडा में फिर भी एक आध प्रोविंस में चांस बन जाता है डिपेंडिंग अपॉन मुख्तलिफ फैक्टर्स के। अगर कोई रिलेटिव भी है आपका, या आपका ऑक्यूपेशन इतना जो है टेक्निकल है कि उसके अंदर खासतौर पर जैसे सस्कैचुअन के अंदर है, तो सस्कैचुअन में आप 5.5 पे भी अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सिलेक्शन, क्योंकि पूल में तो जाना पड़ेगा आपको। आप OID का एक पूल है, उसमें आप जाएंगे, उसमें पिकिंग हो गई तो फिर आप उसमें भी कर सकते हैं, बट इसमें रेयर सिलेक्शंस होती हैं मोस्टली जो है, और मेनली जो है वो 6 इन ईच होना चाहिए, क्योंकि अगर 6 इन ईच नहीं होगा तो मेन प्रोफाइल जो कनाडा लोग समझते हैं एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बन ही नहीं सकती है। ओके तो इसलिए आपके पास मौके कम हो जाते हैं। ओके ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के लिए किन पेशों की ज़्यादा मांग है, क्योंकि इन दिनों आजकल हर कोई ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की बात कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन जिस तरह आपने कहा कि हर कोई आजकल बात कर रहा है, तो डिमांड में है, और तकरीबन कोविड के बाद से 2 साल के बाद जो है वो इन्होंने अपने बॉर्डर्स भी ओपन किए हैं, और इमिग्रेशन का जो कोटा है ओवरऑल वो 400% से ज़्यादा जो है वो बढ़ा दिया है अपना। तो काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स हैं इसमें, नर्सेज हैं, इंजीनियर्स हैं, इवन IT प्रोफेशनल्स हैं, कोई टेक्निकल साइड पर अगर है, इंजीनियर्स हैं, और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, यू नेम इट, काफ़ी सारे प्रोफेशंस उनको इस वक्त जो है वो दरकार हैं। HR एडवाइज़र्स हैं, मार्केटिंग साइड के ऊपर अगर कोई है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, तो काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स हैं। आपको हर ऑक्यूपेशन के वाइज अपनी रिक्वायरमेंट्स मीट करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऑक्यूपेशन फोकस ज़्यादा हो रहा है। हर ऑक्यूपेशन के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। ये भी हो सकता है कि किसी एक ऑक्यूपेशन में आपको रिक्वायरमेंट है कि कम से कम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, और किसी एक ऑक्यूपेशन में इस तरह भी हो सकता है कि कम से कम आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो हर ऑक्यूपेशन डिफरेंट है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। तो लेकिन ये सारे लोग डिमांड में हैं, और हमारे जो फेसबुक पेज है, यूट्यूब पेज है, इसमें हम आगाही देते रहते हैं कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन इस वक्त डिमांड के अंदर हैं, उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को भी देखना ज़रूरी है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से लोग डिमांड में हैं और किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। इवन मीडिया के लोग भी डिमांड में, एक्टर्स, डायरेक्टर, इवन कनाडा में लास्ट टाइम हमने एक मीडिया चैनल पे भी बताया, तो लोगों को आगाही नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो स्किल्ड इमिग्रेशन में भी एक्टर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, तो हम तो दावत दे रहे हैं। ओके अब कोई आए नहीं आए तो अलग बात है, बट द थिंग इसकी अवेलेबिलिटी है। ठीक है। अगर कोई चाहता है, करना चाहता है, तो वो मोस्ट वेलकम है, अप्लाई कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी एलिजिबिलिटी बनती है अगर। ओके सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? बस कुछ नहीं, खुश रहें, खुश रखें लोगों को। मेरी तरफ से तो यही है, क्योंकि हमारे, और ख़ास तौर पर अगर मैं अपनी इंडस्ट्री के हवाले से बात करूं तो केयरफुल रहें। ख़ास तौर पर जब भी किसी को केस देते हैं तो कोशिश करें कि अपनी ड्यू डिलिजेंस जो है वो प्रॉपर करें। उसके अंदर मेरा अपना पैगाम है एक लाइटर मोड में, कि अगर उस पैरामीटर के ऊपर जो मैं बताता हूँ और बताए हैं उसमें अगर मैं भी फॉलो करता हूँ तो मुझे भी रिजेक्ट करें। बिल्कुल। साथ में इसमें मैं ये भी ऐड कर दूं कि इमिग्रेशन की जब बात आती है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। आप किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन अप्लाई करें, कनाडा के लिए देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए देख रहे हैं, किसी भी कंसल्टेंट के पास आप जाएं जिनसे आप रजू कर सकते हैं, जो आपकी लोकेलिटी में जो आपको मुनासिब लगते हैं, फीस वाइज, रिलायबिलिटी वाइज, आप किसी से भी रजू करें, लेकिन एक दफ़ा आदिल इस्माइल का ओपिनियन ज़रूर लें, आपको खुद फैसला करने में आसानी हो जाएगी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पर कनाडा के हवाले से, ऑथराइज एजेंट ऑफ RCC गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, हाईएस्ट PNP प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स अप्रूवल्स हैं सुपीरियर कंसल्टिंग के पास। कोई भी रजिस्टर्ड कंसर्न जो इवन 3-4 हज़ार डॉलर भी चार्ज कर रहे थे, लेकिन PNP का ट्रैक रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने में वो फेल हो जाते हैं, तो वो चीज़ देखना ज़रूरी है। अगर आपका केस प्रोविंस के लिए है तो प्रोविंशियल नॉमिनी का सक्सेस रेशियो किसी के पास है तो उसके पास है। और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी हम 2004 से काम कर रहे हैं, 18 साल से ज़्यादा हो गया, और हाईएस्ट सक्सेस रेशियो के साथ हम काम करें, तो एक ओपिनियन ज़रूर लें, आपको फैसला करने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, आपको फैसला करने में आसानी होगी। इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अबू बकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नाज़रीन, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दूसरे सेगमेंट का बाज़ाब्ता जो है वो इनकाद करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। तो देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।